Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's topic is the Indian Constitution key feature, or in another word, we can say that the key feature of the Indian Constitution. So, before discussing about that the key feature of the Indian Constitution, I would like to uh, some explanation about the Constitution. So, की फीचर के बारे में डिस्कशन से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी दैट द अंडर द कॉलोनियल रूल द इंडियंस फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेशन सो दे कन्विंस दैट Free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. सो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों ने बहुत ही भेदभाव और वायलेशन सहे थे, जिससे वो इस बात से कन्विंस थे कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो उसे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वहाँ एक प्रजातांत्रिक शासन होगा जहाँ सभी लोगों को समानता का अधिकार हो और एवं लोग सत्ता में अपनी भागीदारी कर सकें. So when the members of the Constituent Assembly began to be write the Constitution, there are many things they had have to kept in their mind. So संविधान लिखने से पहले हमारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे उनको बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में रखना था, जैसे लाइक द इंडिया वाज मेड अप ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़. People who spoke different languages belonged to the different religion, and even the princely estates that remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people. So all these things they had to kept इन देयर माइंड. इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने दिमाग में रखा था. एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स दे हैव टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के अनुसार उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था. सो ऑल दिस थिंग्स दे कीप इन देयर माइंड. इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने माइंड में रखा. एंड दे हैड रिटन द की फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर को उन्होंने लिखा. देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के 5 इम्पॉर्टेंट की फीचर्स हैं, जिसमें से पहला है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म को हम हिंदी में संघवाद भी बोलते हैं. दिस वन इज द फेडरलिज्म. Actually, the federalism refers to existence of more than one level of the government, or in the another word we can say that the existence of or in another word we can say that the existence of the government more than one level of the government, or the tiers of the government, that is the central government and the state government. The third tier is the Panchayati Raj. The central government, state government, and the third tier is the Panchayati Raj. So फेडरलिज्म में गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल में बांटा गया है, जिसमें से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, और जो तीसरा टियर है या तीसरा लेवल है वो है पंचायती राज. एक्चुअली the division or the level of the government was very important. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल या डिफरेंट स्तर, विभिन्न स्तरों का होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हाउ कुड बी पॉसिबल दैट only the group of the people who are sitting in the capital city of India, they could be make or take all the decision about the all countrymen who are living in the different regions, because their
requirement is different, their needs are different, their problems are different। क्योंकि सत्ता कुछ लोगों का ग्रुप जो कि हमारे इंडिया के कैपिटल सिटी में बैठकर सभी लोगों का डिसीजन कैसे ले सकता है, जो कि अलग अलग जो कि भारत के विभिन्न जगहों पर से बिलोंग करते हैं, उनके प्रॉब्लम अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग होती है। दिस इज़ द रीज़न द गवर्नमेंट द सेकेंड टियर वाज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जो सेकेंड टियर और गवर्नमेंट का, सरकार का जो दूसरा लेवल था वो बहुत ही ज़रूरी था। दिस इज़ द स्टेट गवर्नमेंट एंड so that the state government can take the decision about their particular area, और state government अपने particular area के लिए वह decision ले सके। So the state government could be made for that decision could be made for the particular area, and there are each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues subjects of national concern, require that all of these states follow the laws of the central government। So each Indian states they can एक्सरसाइज देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। सभी इंडियन राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पावर का और ऑटोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल द स्टेट हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को इन सभी स्टेट का पालन करना होता है, इन सभी स्टेट्स को और सभी राज्यों को पालन करना ज़रूरी होता है। देयर आर द लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सूचियाँ बनाई गई हैं दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। सो संविधान में कुछ सूचियाँ है और जिसके आधार पर सभी गवर्नमेंट को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वह कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। The Constitution also specifies where each tier of government can get the money for the work that it does। Constitution में इस बात का भी ध्यान रखा गया, इस बात का भी उल्लेख है कि सरकार को अपने काम करने के लिए पैसे जो हैं वह कहाँ से मिल सकते हैं। एंड दिस स्टेट डजेंट वर्क ओनली द एजेंट्स ऑफ द फेडरलिज्म। ये जो स्टेट हैं वो केवल संघवाद के केवल एजेंट्स के रूप में ही काम नहीं करते हैं, बिकॉज इन द Constitution also draw the authority of the state। Constitution में इन स्टेट्स के अथॉरिटी और अधिकारों को भी, इन स्टेट्स के भी अथॉरिटी और अधिकारों को दिखाया गया है। द नेक्स्ट टेबल इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो इन द फर्स्ट लेवल वी सॉ दैट, और इसे हिंदी में बोलते हैं संसदीय शासन की पद्धति। इन द फर्स्ट लेवल वी सॉ दैट levels of the government, actually all these levels of the governments are elected by the people। ये जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा है संघवाद और जिसमें हमने सरकार के विभिन्न स्तरों को देखा है। सरकार के ये सभी स्तर जो हैं वो लोगों द्वारा और आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देता है। सो according to the universal adult suffrage, all the adults 18 years or above have right to vote without any discrimination of caste, creed, race, religion, background or etc।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत सभी को अपना वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त है और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो या किसी के बैकग्राउंड के आधार पर। सो दीज लेवल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सभी जो लेवल्स है ये लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। बिकॉज वी गॉट द universal adult suffrage and our constitution recognizes its. Now the next level of the government is the separation of powers, सत्ता का बंटवारा या शक्ति पृथक्करण। तो सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। फर्स्टली वी विल ट्राई अबाउट दैट द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर क्या है? all the elected representatives are called the legislature, whether they are running the government or sitting in the अपोजिशन। चाहे वो गवर्नमेंट चला रहे हों या अपोजिशन में बैठे हों, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उन्हें पब्लिक चुनती है। चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे वो विपक्ष में हो, सभी मेंबर्स जो आते हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं। ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर द ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट रन्स द गवर्नमेंट। ये एक छोटा सा ग्रुप है चुने हुए लोगों का जो कि सरकार चलाती है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉज को कानून को लागू करने के लिए। व्हाट इज द जुडिशरी? जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र ऑर्गन है, एंड इट रेफर टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन द कंट्री। और हमारे देश में जो कोर्ट की व्यवस्था है उसको ये प्रतिनिधित्व करती है। एक्चुअली ऑल द 3 ऑर्गन्स आर सेपरेट टू ईच अदर। जो 3 ऑर्गन्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, एंड दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर। और इन लोगों को अलाउ नहीं किया गया है कि एक दूसरे के कार्यों में बाधा डालें। बट ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। Through this, each organ act as a check in the organs of the state and they ensure the balance of the power between all 3। और इसके साथ ही इन सभी ऑर्गन्स को यह अधिकार है कि वो एक दूसरे के कार्यों को पर ध्यान देते रहें, जिससे कि सत्ता में बैलेंस बना रहे, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस बना रहे, एंड दे कैन नॉट बी एबल टू मिसयूज द पावर। और जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स है वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। द नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल राइट्स, बट आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। सो द लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज द fundamental rights. This is the last topic, not about the fundamental rights. I will discuss in the next video. Secularism. So secularism is the 5th key feature of our constitution. ये हमारे constitution का जो है 5वां key feature है। So I will discuss about that what is secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. सेकुलर स्टेट का मतलब है कि एक ऐसे स्टेट का जिसमें किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली नेशनल रिलीजन के रूप में नहीं डिक्लेयर किया गया है। Our state or the constitution does not declare any religion as a national religion or the official religion। हमारा constitution है जो है वो किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन के रूप में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती है। इट रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट।
यह जो है सेकुलरिज्म जो है रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल ही सेपरेट करती है, बिल्कुल अलग करती है। सो दिस इज़ द रीज़न पीपल ऑफ द डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट रिलीजन लिव इन द सेकुलर कंट्री। और यही कारण है कि अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले लोग ये सेकुलर कंट्री में रहते हैं। अगर कोई भी अगर किसी भी देश में का संविधान किसी एक धर्म को डिक्लेयर करती है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर करती है नेशनल रिलीजन के रूप में, तो वह सेकुलर कंट्री नहीं होगा। सो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सेकुलरिज्म refers the separation of religion from the state, in which the state does not declare any religion as a official religion। स्टेट किसी भी रिलीजन को, ऑफिशियल रिलीजन को रिलीजन डिक्लेयर नहीं करती है, उसको घोषित नहीं कर सकती है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।